موسم سپیڈ ترقیاتی کام تیز نہیں بہت تیز 6.5 کلومیٹر طویل شاہراہ نظریہ پاکستان سگنل فری کوریڈور مکمل 7 پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنے 74 کروڑ 38 لاکھ روپے لاگت آئی ایک بھی درخت نہیں کاٹا گیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے افتتاح کیا کہا کہ ریکارڈ 40 دن میں منصوبہ مکمل کیا بابڈا ٹاؤن کینال بینک روڈ PCSIR جوہر ٹاؤن والے مستفید ہوں گے PIA سوسائٹی ابدالین سوسائٹی کو بھی سہولت ملے گی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 6.5 کلومیٹر طویل شاہراہ نظریہ پاکستان سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 7 یو ٹرنز بنا کر شاہراہ نظریہ پاکستان کو سگنل فری کوریڈور بنایا گیا ہے یہ شہر کی انتہائی مصروف شاہراہ ہے جہاں ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ تھا کوریڈور کو قلیل مدت میں مکمل کیا گیا 7 یو ٹرن 2 پہلے بن گئے تھے 5 یہ اور بن گئے 40 ڈیز میں کمپلیٹ ہوا ہے تو یہ آپ نہر سے لے کے کالج روڈ تک جو ہے یہ سگنل فری ہو گیا ہے اور کالج روڈ کی ری ویمپنگ آلریڈی شروع ہو گئی ہے وہ بھی میرے خیال میں اگلے 15 دن میں 31 دسمبر کو انشاءاللہ اس سے پہلے وہ بھی ختم ہو جائے گی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ نظریہ پاکستان روڈ پر 2 یو ٹرنز پہلے بنے تھے 5 نئے پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنا کر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا منصوبے کی تعمیر کے دوران ایک بھی درخت نہیں کاٹا گیا کینال روڈ سے کالج روڈ امیر چوک تک نظریہ پاکستان روڈ کو سگنل فری کوریڈور بنا دیا گیا ہے سگنل فری بنانے سے یومیہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں مستفید ہوں گی بابڈا ٹاؤن کینال بینک روڈ PCSIR جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کے رہائشی کوریڈور سے مستفید ہو سکیں گے چوک والا انڈر فلائی اوور جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا وہ بھی ٹریفک کے لیے کھل گیا ہوا ہے تو یہ اس پورے علاقے کے لیے آئی تھنک کافی ریلیف ملے گا بیکاز لوگوں کو جو ٹریفک میں ٹائم لگتا تھا اشاروں میں ٹائم لگتا تھا اس سے کافی بچت ہوئے گی ابھی 1-2 اور رستے ہیں جن کو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر آلریڈی نیسپاک اور ٹیپا کام کر رہے ہیں افتتاحی تقریب میں صوبائی وزراء عامر میر اصفر علی ناصر سیکٹری ہاؤسنگ کمشنر ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے لرنر اور ڈرائیونگ لائسنس کا بڑھتا رجحان DLM IS2 کا آغاز کر دیا گیا لرنر لائسنس کا مرحلہ صرف 30 سیکنڈ میں مکمل نئے سسٹم سے نام شناختی کارڈ نمبر تاریخ پیدائش انٹر کرتے ہی لائسنس پرنٹ ہو جائے گا 2 روز میں 2,26,000 لائسنس جاری لاہور سمیت پنجاب بھر میں شہریوں کو سہولت دینے کے لیے نیا سسٹم متعارف کروا دیا گیا SSP ٹریفک سید غضنفر علی شاہ کے مطابق DLM IS2 کے آغاز سے پنجاب بھر میں روزانہ لائسنس بنانے کی گنجائش میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے لرنر لائسنس بنانے کا پروسیس 1.5 سے 2 منٹ کی بجائے 20 سے 30 سیکنڈ میں مکمل کیا جائے گا لرنر لائسنس کا سائز بھی تبدیل کر کے چھوٹا کر دیا گیا ہے نئے سسٹم کے تحت امیدوار کا نام ولدیت شناختی کارڈ نمبر اور تاریخ پیدائش انٹر کرنے سے فوری طور پر لرننگ لائسنس پرنٹ ہو جائے گا نئے سسٹم کے تحت باقی تمام قواعد اور ڈیٹا شناختی کارڈ کی مدد سے مکمل ہو جائے گا پنجاب بھر میں نئے سسٹم کے آغاز کے 2 روز کے دوران 2,26,000 لائسنس جاری کیے گئے ہیں بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ نوٹیفکیشن جاری بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافہ قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافہ قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت اور آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کی وجہ سے شہر کا غریب طبقہ پریشان ہے آٹا چاول اور چینی کی قیمتیں عام مارکیٹ کے برابر آ گئیں شہری کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں غریب طبقے کے لیے ریلیف کہاں باقی رہ گیا شہر کے مضافاتی علاقوں کی آبادیوں کے نزدیک بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سپلائی چین برقرار نہ رہنے سے غربا پریشان ہیں اور اشیاء خوردونوش کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں بھی کم آمدنی والے طبقے کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں فرق ختم ہو گیا ہے یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی 155 اور اوپن مارکیٹ میں 135 سے 140 روپے فی کلو گرام مل رہی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریلیف دیں تھوڑا سا اور اس پہ نظر ثانی کریں نظر رکھیں قیمتوں کو تھوڑے کم کریں تاکہ جو غریب طبقہ ہے وہ اس یوٹیلیٹی سٹور سے فائدہ اٹھا سکے اسی طرح اوپن مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کے چاول 350 اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر 420 روپے فی کلو گرام میں بک رہے ہیں اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی قیمتوں میں بھی فرق ختم ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں 10 کلو گرام کا تھیلا 1420 اور اوپن مارکیٹ میں 20 کلو گرام 2800 روپے کا مل رہا ہے شہریوں نے وفاقی حکومت سے 8 بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے مقابلے کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شہری کہتے ہیں انہیں کہیں سے تو ریلیف ملے کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی 42
LDA सिटी मंसूबे में फंसे अलाटियों पर एक और बम गिराने की तजवीज़ तैयार। LDA ने अपनी नाकामियों और मंसूबे की डेवलपमेंट की ताख़ीर का मलबा अलाटियों पर डालने का फैसला किया है। 8 साल से कब्जे के मुंतज़िर 100% डेवलपमेंट चार्जेस देने वाले अलाटियों पर डेवलपमेंट चार्जेस बतौर इजाफी लागत डाली जाएगी। डायरेक्टोरेट ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुकम्मल डेवलपमेंट चार्जेस देने वाले अलाटियों पर बोझ डालने की तजवीज़ तैयार की है। ज़राए के मुताबिक पहली और दूसरी बैलेटिंग में 100% अदायगी करने वाले अलाटियों को भी इजाफी लागत देना होगी। 2 किनाल पर 20,70,000, 1 किनाल पर 10,35,000 इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस करने की तजवीज़ दी गई है। 10 मरला पर 6,21,000 जबकि 5 मरला पर 3,60,000 इजाफी अदा करने की तजवीज़ है। डायरेक्टर LDA सिटी ने हकायक के मुनाफी फिगर्स पर हुकाम को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक तीसरी और चौथी बैलेटिंग से इजाफी चार्जेस लिए गए। इस वक्त पहली और दूसरी बैलेटिंग के अलाटियों पर बोझ न डालने का फैसला किया गया। LDA सिटी डायरेक्टोरेट की नाअहली से इराजी न दी गई और डेवलपमेंट वर्क्स मुतासर रहे। LDA हुकाम अपनी नाअहली छुपाने का फार्मूला ऐवान वज़ीर आला को पेश करेंगे। वज़ीर आला ने LDA सिटी पर पेशरफ्त और कब्जा देने के प्लान पर प्रेजेंटेशन मांग रखी है। स्मोग में इजाफा, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन का नोटिस। प्राइवेट स्कूलों को 60% बच्चे हर सूरत जाती स्कूल बस पर लाने के पाबंद कर दिया। महकमे तालीम ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को बसें खरीदने का सर्टिफिकेट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। इजाफे के 22 सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने हिदायत की है कि तमाम प्राइवेट स्कूलों के 60% बच्चे हर सूरत स्कूल बस पर आएंगे। प्राइवेट स्कूल्स को हर सूरत अपनी स्कूल बस खरीदना होंगी। स्कूल 60% बच्चों को जाती बसों पर लाने के पाबंद होंगे। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर मुतलका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को अहकामात पर अमल दरामद के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने प्राइवेट स्कूलों को हिदायत जारी करना शुरू कर दी है। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि इंस्पेक्शन टीमें प्राइवेट स्कूलों का कल से विजिट करेंगी और हर स्कूल अपनी बसें खरीदने का पाबंद होगा। यंग डॉक्टर्स की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का नवा रोज। इलाज मुआलजा बदतरीन तातुल से दो चार। तशखीसी टेस्ट भी बंद। OPD बंद होने से हजारों मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कोई पुरसाने हाल नहीं। यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर में हड़ताल का 9वां रोज। हड़ताल से सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआलजा बदतरीन तातुल से दो चार रहा और आउटडोर में आने वाले हजारों मरीज दर बदर होते रहे। हड़ताल के बायस OPD में मरीजों के तशखीसी टेस्ट भी बंद कर दिए गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआलजे की बदतरीन बंदिश पर महकमा सेहत और YDA के माबैन डेडलॉक बरकरार है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान के कातिलों की गिरफ्तारी और डॉक्टर्स के खिलाफ महकमा सेहत की इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने तक एहतजाज और हड़ताल जारी रखी जाएगी। आम शहरियों को गोशवारे जमा करवाने की तलकीन करने वाले खुद नॉन फाइलर्स निकले। FPR के सैकड़ों अफसरान मुलाजमीन की जानिब से टैक्स गोशवारे ताहाल जमा न करवाए जाने का इंकिशाफ। बोर्ड ने तमाम अफसरान मुलाजमीन को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 6 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। के सैकड़ों अफसरान मुलाजमीन खुद नॉन फाइलर्स हैं। FPR के ग्रेड 17 और उससे ऊपर के दर्जनों अफसरों ने टैक्स गोशवारे ताहाल जमा नहीं करवाए। माली साल 2021, 2022 और 2023 के टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए गए। रवां साल टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए तारीख में 30 अक्टूबर तक तोसी की गई थी। FPR ने अपने नॉन फाइलर अफसरान मुलाजमीन को गोशवारे जमा करवाने के लिए 6 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है, जिसके बाद भारी जुर्माने किए जाएंगे। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को मुतलका मुलाजमीन की टैक्स रिटर्न फाइल मुकर्ररा वक्त तक जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। भारतीय पंजाब से आए सिख यात्रियों को लाहौर में लूटने वाले गैर मुल्की मियां बीवी समेत 3 मुलजमान पकड़े गए। पुलिस ने गिरोह पर गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का शुबा जाहिर किया है। भारतीय पंजाब से आए सिख यात्री खानदान के साथ लूट मार करने वाले अफराद गैर मुल्की मियां बीवी निकले। 1000 कैमरों की फुटेजेस देखने के बाद पुलिस ने मुल्जमान का ताकुब करके गिरफ्तार कर लिया। 29 नवंबर की सुपहर गुलबर्ग में शॉपिंग के दौरान कंवलजीत सिंह, उनकी अहलिया और मुलाजिम से पुलिस वर्दी में मलबूस कार सवारों ने वारदात की थी। पुलिस ने 1000 कैमरों की फुटेजेस देखने के साथ साथ 1100 घरों का रिकॉर्ड चेक किया और बिलाखिर मुल्जमान का सुराग लगाकर कराची जाकर गैर मुल्की शख्स मुल्जिम शाहरुख, उसकी अहलिया रेहाना शाहरुख और साथी इरफान को गिरफ्तार कर लिया। जहाँ पे भी हमें इतला मिली हम वहाँ तक पहुँचे। 1000 से ज़्यादा कैमरे चेक किए गए, 1000 से ज़्यादा घरों में पताजोई की गई और मैं मशकूर हूँ उन फैमिलीज़ का भी जिन्होंने इन मुल्ज़मान को पकड़ने में कैमरों के हवाले से लाहौर पुलिस की मदद की। शाहरुख नाम के इस मेन मुल्ज़म को गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे वो वर्दी बरामद हो चुकी है, वायरलेस सेट बरामद हो चुका है, वो पिस्टल बरामद हो चुका है। इसके साथ इसके जो
हमराही मुलजम थे रेहाना शाहरुख और मोहम्मद इरफान, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजमान की गिरफ्तारी और रकम की वापसी पर सिख खानदान पुलिस समेत हर शोबे की तारीफ किए बगैर न रह सके। मैं अपने पंजाब दी पुलिस नूं सलूट करना। पहली गल है कि उन्होंने वारदात फड़ ली, पर उस तो वड्डी गल जिहड़ा प्यार, जो इज्जत, जो मान मैनू इत्थे मिलिया, मैं तो वारदात नूं याद ही नहीं कीता। पुलिस का कहना है कि सिख यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के एजेंट के तौर पर काम करने का शुबा है। मजीद तफ्तीश जारी है। इरफान मलिक, सिटी 42। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद खान भट्टी पर सड़कों की तामीर में कमीशन लेने की डिमांड के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज होने का मामला। हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी और शरीक मुलजिम शाहिद परवेज की दरख्वास्त जमानतों पर वकला को 12 दिसंबर को बहस के लिए तलब कर लिया। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुलजिमान की बदस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। खदीजा शाह की नजरबंदी और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें। हाई कोर्ट ने नजरबंदी बरकरार रखने की काबीना मीटिंग के फैसले की कल तलब कर ली हैं। जिना हाउस हमला केस के मुलजिमा फरहद फारूक की अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 दिसंबर तक जमानत मंजूर कर ली। फरहद शहजादी समेत दीगर के खिलाफ अराजी स्कैंडल में नैब इंक्वायरी। एहतसाब अदालत ने शरीक मुलजिम चौधरी अता मोहिउद्दीन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापिस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस अदालत ने आजम खान सवाती और मुराद सईद समेत 8 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रैली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने का मुकदमा। अदालत ने सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर हतमी दलाल तलब कर लिए। बालों का रंग खराब करने पर खातून अदालत पहुंच गई। मुनीबा ब्यूटी क्लिनिक गुलबर्ग के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को 7 दिसंबर को तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म हो गए। साबिक सदर पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला के ओहदेदारान कारकुनान ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के सूबाई नायब सदर यावर अब्बास ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। PPP मंडी बहाउद्दीन स्पोर्ट्स विंग के ज़ली सदर अदनान असलम, सामल तारर, अरशदुल्ला अरसलान मुख्तार और दीगर भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के PPP रहनुमाओं ने बिलावल हाउस में मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़, PPP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अली मदद ने मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी और PPP रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि नदीम अफजल चंद, रियाज शाहवानी और मखदूम इर्तजा ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी के बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मुंदखिल की मुलाकात। तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत। बलूचिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान जाफर खान मुंदखिल की मुलाकात के मौका पर ख्वाजा साद रफीक, सरदार अय्याज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान हमारा दिल, हमारी जान है। बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान का दौरा किया। दोबारा मौका मिला तो बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दानिश स्कूलों का जाल फैलाएंगे। बलूचिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की का मुस्तकबिल में महवर और मरकज़ साबित होगा। जाफर खान मुंदखिल ने एवन फील्ड रेफरेंस में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर मुबारकबाद पेश की।